We are live, not live as in Yeah. record. Yeah. Hello and welcome everyone to episode number 46 at the Indie Football Podcast, where we are with Tathya Mongia. Before that, I'd like to talk about how this isn't the first time we are sitting together to record this particular episode. So, Tathya, you are the first one to provide us, not us actually, North India, with a groundbreaking experience last night. How are you feeling about it? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यार कि जैसे मैं आया तभी मतलब अर्थक्वेक ही आ गया। इतनी Yeah, अच्छी but परफॉर्मेंस तो मैंने कहीं नहीं दी आज तक। I mean, but Anukarsh sir, हम तीन ऐसे अभी ऐसी बात कर रहे हैं, but you are the only one to have felt it. So how bad was it? Because I remember you saying, I think it's an earthquake, and then we need to evacuate the building, and then now we are here 24 hours later doing it. So how was it last night? It was fun actually, if I look at it. I'll tell you why. Because the thing is, I really thought that Tathya must be thinking that there's a madman on the other side of the screen. Because I was literally doing this at a point when we had not started recording. And Yeah. what's funny was that I told you guys that, I will just check. And then I came back and then I just, left for 5 minutes. And then there was a part of me which was that let me just leave everything and just evacuate the building. But then I was Yeah. like, no, Tathya is someone who's waiting. I should go back in danger, tell them that no, there will be a slight delay, and then come back. So yeah, that's how much we love the Indie Football Podcast. And if anyone ever asks what is a differentiating factor, we usually shoot when there's an earthquake around. Yeah, I mean, Tathya, अभी तो हमने earthquake की बात कर ली है, but thanks for taking out the time for being here with us. आप हमें थोड़ा अपने फुटबॉल के बारे में बताइए। कब से आप फुटबॉल देखना चालू किया है? आप रियल मैड्रिड फैन हो, जो कि अच्छी बात है। इवन आई एम अ बिग रियल मैड्रिड फैन, एंड आई हैव फॉर डिफरेंट रीजंस, प्रोबेबली बिकॉज आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग फुटबॉल मच लेटर देन यू हैव। बट या आप ये बताइए कि हाउ हैज फुटबॉल इन्फ्लुएंस्ड योर लाइफ एंड व्हाई स्पेसिफिकली आप एक रियल मैड्रिड फैन हो? See, for me, actually, I was not into football at first. Okay, I was मतलब मैं एक skater था। मेरा Oh, स्पोर्ट interesting. स्केटिंग था। Oh, तो उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल गया, तो वहाँ पे स्केटिंग का ज्यादा मतलब कुछ इन्फ्लुएंस नहीं था। तो वहाँ पे Okay. सिर्फ क्रिकेट एंड फुटबॉल था। तो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई फुटबॉल। मतलब सब बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं इसके लिए। तो मैंने जब Right. फर्स्ट टाइम खेला तो ये कौन से साल की मतलब बात मुझे है कुछ फिर? आता नहीं था अभी तक। आई थिंक इट वाज अराउंड 20 2016 आई गेस, या 2016। Oh, Right. yeah, Okay. great. So it was, I think, a great time to be a Real Madrid fan. I think Anukarsh sir, that is when Real Madrid Yeah, won thrice in a row, right? Champions League. yeah. Yeah, and I think like being a Liverpool fan, it's like the worst time to be in this podcast right now, especially with a Real Madrid fan there, because we have lost to you guys so many times. It's like every time it's such a big Yeah. heartbreak for me. But yeah, it at this point it doesn't even hurt anymore. I'm numb. My first Champions League final was the match between Liverpool. Match Oh, versus Liverpool. okay. That Loris Yeah. Karius match, My first, huh? that Loris Karius match, Yeah, that one. that. The way where Gareth Bale scored two of the best goals. Tathya, listen, I will have to stop you here for a second. हाँ, Your मेरे को लगा internet connection इंटरनेट is a थोड़ा bit वो weak. है ना। I think we आपका, should, I'll edit that out, don't worry. But your but you internet can is. change if you're, for example, joining Wi-Fi से, तो try mobile data, and because कल हाँ, आपका Yeah. connection बहुत ही clear था, ठीक बहुत है? अच्छा अभी आ रहा था। आज आपकी आवाज भी थोड़ी रिवर्बरेट कर रही है। हाँ एग्जैक्टली, मुझे लगा पहले मेरा ही था, बट नहीं, हाँ, अनुकर्ष का मतलब तो आई एकदम डिडंट। ही हाँ साफ आ रहा है।
In 2 minutes. या नो इश्यूज नो हाँ, no इश्यूज problems, no problems, no problems. हाँ कल नहीं आ रहा था So इसका इतना जो कट रहा yeah, था कल it was perfect actually. मतलब कल तो his voice बट was कोई also नहीं not वंस ही कम्स echoing. बैक वी कंटिन्यू फ्रॉम दैट पार्ट हाँ ठीक है, not a problem. दिव्यांश को बता देंगे पहले ना कि हाँ हाँ उसका फिर यस बताना दिव्यांश पड़ेगा। का ये पार्ट है और दिव्यांश हाँ ठीक। दिव्यांश को मेरे को पूछना था एक एक बार कहाँ गया हाँ माय फोन इज हियर सॉरी आई वांटेड हम्म, टू आस्क अबाउट व्हाट उसने कुछ बोला था वो आज रात तक करेगा जो मैं अगर भूल तेरे गया पास 15 minutes हो after the podcast, then we can call Divyansh and we can ask, or if you want, we can have that discussion about Abhi after the episode. ठीक है, that's ठीक fine. है कर सकते हैं I'll ओके just, he's back. Tatha is back. ओके Hi guys. Now is it good? Yeah, आई थिंक इट्स मच बेटर यस it's यस better. Huh? The fan is making quite a noise actually. Like it's making a bit of sound. Can if you can just turn it down because thing is वो last में audio में थोड़ा problematic है. हम्म How is it now? Perfect. Yeah, There is so no. कोई नहीं we just continue from where we were at ठीक है so probably Anukarsh starts with saying the keeper's name okay I never got his name हाँ, right and then yeah. Tathya you can continue from there okay ठीक है. So yeah, I was saying that yeah, it was the Loris Karius match which I guess you were talking about, and that match actually sends chills down my spine every time I think about it. But for Real fans, that like I'm sure they must be remembering it with a lot of happiness and something that they will remember for the rest of their lives. Yeah, yeah, man. That match was like, मतलब मैंने अपने दोस्त के साथ देखा था उसको, है ना? In a video call, मतलब हम दोनों Oh, वीडियो कॉल में थे और ही वाज okay. इन पंजाब, तो हम दोनों वीडियो कॉल में मैच देख रहे थे, तो मतलब so आप मुझे बहुत ये awesome था. बताइए कि अदर देन दिस चैंपियंस लीग फाइनल मैच आपको रियल मैड्रिड के अलावा कोई और मैचेस हैं ऐसे जो आपको एकदम ही ऑन द टॉप ऑफ योर हेड ऐसे याद है कि हाँ ये ऐसा मैच है दैट एज ए रियल मैड्रिड फैन मेरे को हमेशा याद रहेगा I think for me, मतलब हर एक एल क्लासिको ही है रिमेम्बर रखने के लिए, चलो ठीक है एल है ना? हाँ ग्रेट आई मीन एल क्लासिको की बात तो हम करने ही वाले थे तो अनुकर सर आफ्टर 26 मैचेस इन दिस करंट सीजन Barcelona are 12 points clear of Real Madrid at the top of the table. So even the most Hmm. सबसे ज्यादा जो एकदम ही बहुत ही ज्यादा बड़ा रियल मैड्रिड फैन होगा उसे भी अंदर ही अंदर पता है कि शायद ला लीगा का लीग तो अभी इस साल के लिए इज गोइंग टू बार्सिलोना राइट या Absolutely, man. And honestly, like it is a bit tough to understand how Real is so good in Europe, and what happens in what has been happening in the league this season because like Real went 1-0 up, and you felt कि अभी recently जब Copa del Rey का first leg हुआ था, that result won't happen again. But then हम्म again, like I think Barca were at it from the start, like the tackles that say Sergio Roberto, Gavi were putting in the I will never understand why, but the rivalry that Ceballos and Gavi have going on for some reason, like absolutely they are after each other's lives for some reason, and very unlikely scorers for Barcelona. If you would have told me at the start of the match that Sergi Roberto and Frank Kessie would be the ones scoring against Real this time around in the La Liga, हाँ even Tathya would have laughed. I'm sure about it. So yeah, मतलब uh, मतलब yeah, फ्रैंक केसी तो यार ऐसा प्लेयर है कि मतलब मैंने उसको इमेजिन नहीं किया था कि मतलब वो हमें मतलब जो स्टार्टिंग लाइन में इतना नहीं खेल रहा था सीजन, वो हमारे खिलाफ गोल right. मारेगा. हाँ, तो मैन मेरे भी पीजी में ओवर हियर आई हैव मेनी बार्सिलोना फैंस है तो जो बार्सिलोना फैंस खुद ही वो फैन कैसी को लेके इतने सरप्राइज्ड रहते हैं कि हाँ भाई गोल right. मारा बट तात्या मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर एल क्लासिको में आपको क्या लगता है व्हाट
what went wrong for Real Madrid and at what time, कि पूरे मैच में ही ऐसा आपको लग रहा था कि रियल मैड्रिड के इधर डिफेंस थोड़ा पेनिट्रेबल लग रहा था कि अटैक उतना इंसाइसिव नहीं लग रहा था, तो आपको क्या लगा कि हाँ ये एक मोमेंट है जहाँ पे आज शायद रियल हार जाए? एक्चुअली फॉर मी देखो, सबसे पहले था कि हमारी लाइनअप ना बहुत प्रेडिक्टेबल हो गई है। मतलब our स्टाइल ऑफ प्ले, our लाइनअप, कैसे हम बॉल्स डालेंगे, कैसा काउंटर है, बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया है। क्योंकि आई थिंक सेम लाइनअप was the one which we played in the previous Champions League final against Liverpool last season. तो पूरी सेम ही थी, मतलब कोई डिफरेंस नहीं था। जस्ट आई थिंक रूडिगर वाज नॉट देयर एंड कैसेमीरो नहीं है because he has moved to Manchester United. या आई थिंक बस कैसेमीरो नहीं था और रूडिगर की वही डिफरेंस था। बाकी तो यार देखो हमारा बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया है ना। और आई थिंक कार्लो एंचेलोटी इज द टाइप ऑफ मैनेजर की वो बेसिक्स में ज्यादा रहता है ना। वो उन्हीं प्लेयर्स को रखता है जिससे उसने स्टार्टिंग, जब से वो फर्स्ट टाइम आया था मैड्रिड में, तो वो उन प्लेयर्स को खिलाएगा, आखिरी दिन तक वो उन्हीं प्लेयर्स को ही खिलाएगा आई थिंक। और अगर अभी जनवरी ट्रांसफर सीजन में अगर हम कुछ नए प्लेयर्स ले लेते तो आई थिंक वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट करता है अभी एल क्लासिको में और द अपकमिंग एल क्लासिको, है ना। और आई थिंक यही डिफरेंस है बस अभी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी ऐसे लगता है कि हमारे इंस्टाग्राम पे भी, अगर आप इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम को फॉलो करते हो, तो हमने एक नया सेगमेंट चालू किया है कॉल्ड थर्सडे ट्रिविया। लास्ट थर्सडे हमने ये लिखा था कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना इस लास्ट एक महीने में 3 बार मिलने वाले हैं। तो अनुकर्ष सर, 6 अप्रैल को फिर से कोपा डेल रे होने वाला है। तो व्हाट डू यू थिंक इफ now that for a moment forget that you are a Liverpool fan and suppose you are a Liverpool fan, even when I have to put you in some other situation, what naturally comes out is you being a Liverpool fan, but for the 6th April Copa del Rey match, now that Barcelona has a 1-0 aggregate lead for that Copa del Rey second leg, and now that Barcelona has already defeated Real Madrid in this El Clasico, so again Xavi's men have that advantage for that particular match, right? I know, but I think मुझे personally ये लगता है like this time around, and I'm not saying because Tathya is our guest here, I'm saying it generally. I get a feeling कि this time Real is gonna win it because मुझे लगता है कि जिस टीम के पास कमाविंगा, क्रूज, मॉडरिच स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलरली, जिस टीम के पास बेंजेमा, विनीसियस जूनियर जैसे प्लेयर्स है, आई गेस this is the team that can make a difference at any point of time, and they have it all to make a difference. They have it all to actually, go out there and turn it around. And I think because the Real have played Barca a lot of times this season so far, I think this is the time when things start changing. और ऐसे नहीं, बहुत लैक्यूने हैं दोनों टीम्स के बीच में। ऐसे ही रहता है कि इट्स लाइक अ वेरी 19-20 का अंतर जिसको कहते हैं दोनों टीम्स के बीच में यूजुअली। And I think Real can turn it around, but then again, that is the thing with Real. You do not know which Real will turn up. Will it be Real of the Champions League, or will it be the Real of the La Liga, which has been struggling for consistency? So that is what it remains. But again, I think Real can turn it around. Tathya, what do you think? मुझे लगता है कि यार अभी जो इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है, आई थिंक 1 वीक का ही है, जो उसमें जो प्लेयर्स जाएंगे अपनी होम कंट्री के साथ खेलेंगे, है ना, उसके बाद आके आई थिंक डायरेक्टली हमारा एल क्लासिको ही है। तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम, नॉट फॉर अस, फॉर बार्सिलोना ऑल्सो, पर एक्चुअली बस यही देखना है कि मतलब सब अपने अपने कंट्रीज में अच्छा करें, तो उसमें आके हमारे क्लब में ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। कि आई थिंक ज्यादा प्लेयर्स गए नहीं है अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए, पर जो भी हैं, जो मेन ही गए हमारे सारे, तो बस वो अच्छे से खेलें। बाकी आई थिंक इस टाइम पे हमारे जो मेन पॉइंट है, आई थिंक लेफ्ट बैक में हमें बहुत प्रॉब्लम है मैड्रिड के, क्योंकि फर्लैंड मेंडी इज आउट, एल्बा इज आउट, और नाचो तो ही इज अ वर्सेटाइल डिफेंडर, बट वही एक मतलब वीक फुट और स्ट्रॉन्ग फुट की बात आ जाती है वहां पे।
तो कामाविंगा खेल सकता है, पर आई थिंक जो लेफ्ट फ्लैंक है हमारा, उसमें बहुत थोड़ा वीकनेस आ रही है, उसी से आई थिंक बहुत गोल पड़ रहे हैं हमारे। तो बाकी वो स्ट्रांग हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। आई होप कि हमारे नेक्स्ट ट्रांसफर में बेलिंगम और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स, काश हमारे प्लीज ऐसा नहीं अभी। आई थिंक लिवरपूल अभी बेलिंगम पे है टारगेट, मैन सिटी भी है, पर मैड्रिड के बाद अभी है, मतलब अभी इसमें खर्च नहीं किया इस विंडो में, तो वो खरीद Right. सकता है। तो May the अगर best team win. या अगर बेलिंगम हाँ. लिवरपूल में आ जाए फिर तो अनुकर सर प्रोबेबली विल गो ऑन अल्लाह आई डोंट बस। नो हाउ टू कंटेन हिज एक्साइटमेंट बात Yeah, even if I jump off the second floor, मैं उड़ ही रहूंगा हवा में. I'm sure about that. I am sure like I will be that safe because I तो will have wings. तो नाउ दैट हम लिवरपूल और रेड रियल मैड्रिड के आने वाले मैचेस के बारे में बात कर ही रहे हैं, हम रिसेंटली चैंपियंस लीग के ड्रॉज बाहर आए हैं एंड रियल मैड्रिड इज गोइंग टू प्ले चेल्सी नाउ एज द नेक्स्ट ओपोनेंट्स इन द चैंपियंस लीग। तो तात्या, तुमको क्या लगता है कि चेल्सी स्ट्रगलिंग है ना, इवन दो चेल्सी अभी Chelsea CFC is a famous initiative that the global club has been sent over a team to India. It was an event that even I got to cover last weekend. So there were legends like Jimmy Floyd Hasselbank coming over here. But currently the Chelsea team is struggling, right? Enzo Fernandez is something that every Chelsea के बारे में सब खुश हैं, but Real Madrid versus Chelsea में even अगर आप Real Madrid के फैन नहीं भी हो, आपको ऐसा लगेगा कि रियल मैड्रिड हैज द अपर एज, है ना तात्या? Yeah, see, actually, Chelsea no doubt is a very good team, है ना। उनके पास जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, मतलब जो इन्होंने इस ट्रांसफर विंडो में स्पेंडिंग्स की है, आई डोंट थिंक ऐसा किसी क्लब है जिसने इतनी की होगी। एग्जैक्टली सही बात है. उन्होंने Makes sense. Makes उन्होंने sense. हर एक अपनी साइनिंग 100 मिलियन यूरोस तक की है मैक्सिमम। तो हमारा थोड़ा चैलेंज होगा, पर एज यू नो लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर भी हमारे लिए चैलेंज, पर वी लास्ट शोड ईयर तो एवरीवन हाउ गुड आर वी। लास्ट या ईयर तो काफी ड्रीम रन था जहां हमने चेल्सी को, मैन सिटी को, आई एक और इंग्लिश टीम थिंक था मैन सिटी, चेल्सी एंड लिवरपूल है, पीएसजी इन राउंड ऑफ एंड 16। पीएसजी, या करेक्ट। तो अनुकर Yeah. सर, एज अ चेल्सी फैन पहली हालात थोड़े खराब है, ऊपर से रियल मैड्रिड फॉर द चैंपियंस लीग ड्रॉ काफी टफ होने वाला है फॉर एनी चेल्सी फैन राइट नाउ, है ना? और डू यू थिंक Yeah. दैट, एक्चुअली हाँ बोलो तात्या बोलो। Yeah. Yeah. या एक्चुअली लास्ट 2-3 प्रीमियर लीग मैचेस में चेल्सी ने अच्छा फॉर्म दिखाया है, तो उससे मुझे डर लग रहा है यार, काश अभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बट मुझे अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस है, वो अच्छा खेलेगी जैसा खेलती आ रही है। बट या अनुकर सर, चेल्सी ने अच्छा खेला है प्रीमियर लीग मैचेस में एंड रियल मैड्रिड बेचारे बार्सिलोना से अभी हार गए, तो द कार्ड्स आर लुकिंग ब्राइट फॉर चेल्सी फैंस राइट नाउ। हाँ, I mean, honestly, like तात्या की बात भी ठीक है, but then जैसे अभी जो लास्ट मैच था चेल्सी का एवर्टन के अगेंस्ट, तो वो ड्रॉ हो गया था 2-2। तो I mean, एग्जैक्टली what I can say is that Chelsea थोड़ा सा they have looked a bit better, but again, Real is Real. If I have as I mentioned before कि अगर मैं Real का अटैक देखूं, Real की मिडफील्ड देखूं, like there hasn't been one time when I have watched Real and I haven't marveled at how amazing their midfield is. इतने अच्छे players हैं ना, इतने ज्यादा अच्छे players हैं. I mean, it's like you as a like I'm saying from a Liverpool fans POV, you see a match in which your team is playing Real and तुम्हें डर लग जाता है कि यार ये मिडफील्ड कैसे हैंडल होगी. तुम अटैक हाँ चलो कोई बात नहीं, अटैकर्स मैच एक बार को कर लो, डिफेंस मैच कर लो, बट क्या मिडफील्ड है उनके पास. एंड वो 7 फुट का लंबा गोलकीपर कुर्तुआ, एक तो वो तो लाइक यू लुक एट दैट टीम. आई मीन ऑल यू कैन से इज ऑल यू हैव इज smiles and happiness for if you are a Real supporter. And I think going into this match, the only thing Real should be like caring about is ki whether it's going to be a bashing or whether it's going to be just a win, because I do not personally see Chelsea coming out of this as winners.
unless कुछ बहुत ही drastic हो जाए. But then that is the beauty of sport. That is the reason we have been running this podcast for, because पता नहीं कब क्या हो जाए स्पोर्ट में, यू नेवर नो. छोटी से छोटी टीम्स भी हरा ही लेती है किसी ना किसी को. बट एट दिस पॉइंट आई डोंट सी चेल्सी डूइंग एनीथिंग गुड अगेंस्ट रियल. हाँ, हमने काफी, और ताथिया तुम्हारे जैसे काफी सारे रियल मैड्रिड फैंस हमारे पॉडकास्ट में आए हैं. अंशुल है, कुणाल नेटके थे यार, 2-3 और भी आए थे जो, तो हम रियल मैड्रिड की काफी हाँ यस एग्जैक्टली काफी बात की है. तो मुझे ऐसा लगता है कि irrespective of their form in La Liga or Copa del Rey, when it comes to Champions League, Real Madrid just becomes a different beast altogether. So as Real Madrid fans, from one Real Madrid fan to another, I do hope better times are coming forward for us. तो नाउ दैट हमने तात्या से इस एपिसोड से पहले पूछा था कि व्हाट आर द पॉसिबल टॉपिक्स दैट यू वांट टू स्पीक फॉर दिस एपिसोड, ही सेड वन, आई एम अ रियल मैड्रिड फैन, उसके बारे में हमने काफी बात की. एंड सेकंड इज अबाउट इंडियन फुटबॉल. सो रिसेंटली हमने काफी सारे, इन द लास्ट 5 episodes आई थिंक, in 2 or 3 of them, Anukarsh sir, if I'm not wrong, we have spoken about Indian football, the ISL. हम प्रसन्ना आए थे, प्रसन्ना ने ISL के बारे में बात किया. सो ताथिया, आप हमें बताइए, आपको इंडियन फुटबॉल के बारे में इन जनरल सबसे अच्छी बात क्या लगती है, और एक चीज जो प्रोबेबली आपको थोड़ा वरी करती है. अच्छी बात तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं. हम ये है कि ISL डेवलप हुआ है अभी. I promise you, I'm gonna put out a snippet just of that reaction. अच्छी बात तो अभी कुछ है नहीं. Honest Like Tathya is like blatant. unsweetened. Tathya is not even defending कि नहीं कुछ sugarcoat करते. He's like अच्छी बात कुछ है ही नहीं. Anyway, हाँ. Please speak. But then हाँ, आई थिंक कि इंडियन फुटबॉल टीम तब तक इम्प्रूव नहीं कर सकती जब तक आप अपना कंपटीशन आगे ना बढ़ाओ. आई थिंक राइट नाउ हीरो इंडियन ट्राई नेशन लीग इज गोइंग ऑन. या टुडे वाज इंडियाज मैच. India Myanmar, आई थिंक right? Myanmar, या वी yes. वन 1-0. तो अगर हम अपने आसपास में ही लड़ते रहेंगे तो हम बाहर के कंपटीशन से कुछ नहीं कर पाएंगे. मतलब वी हैव साफ, है ना, वो ये जीत के थक गए हैं यार, है ना. मतलब अभी इंटरनेशनल ब्रेक जो चल रहा है उसमें कंट्रीज लाइक ब्राजील, अर्जेंटीना, लाइक इन यूरोप, यूरोपियन क्वालिफायर्स फॉर आई थिंक आर गोइंग ऑन. But what about the countries in South America like Brazil, Argentina? They are coming for friendlies against Japan, Korea, and like these countries. तो अगर वो लोग वहां से साउथ अमेरिका से फ्रेंडलीज करने के लिए यहाँ आ सकते हैं, तो हमारी इंडियन एसोसिएशन भी तो कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज कर सकता है. मतलब जल्दी से ही ब्राजील, अर्जेंटीना से मैच मत करो, बट लाइक हम एशिया में अच्छे चाइना से मैच कर सकते हैं. चाइना इज अ वेरी गुड टीम. We have Korea, South Korea, Japan, World Cup teams, and ईरान, सऊदी अरेबिया. हम इन्हीं टीम से थोड़ा थोड़ा करके अपना लेवल तो बढ़ाएं. कि आई थिंक इंडियन प्लेयर्स को भी पता नहीं है कि बाहर का कंपटीशन कैसा है सच्ची में. मतलब कि आई थिंक जब से ISL स्टार्ट हुआ है, इस सीजन को छोड़ के हर सीजन बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक फॉरेनर ही बना. ऐसा एक इंडियन नहीं बना आई थिंक जो अब तक इस सीजन में तो आई थिंक चांते बना है. बट इसके अलावा किसी सीजन में कोई भी इंडियन बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं बना. तो ISL बहुत इम्प्रूव हुआ है लास्ट 2-3 ईयर से. बहुत बहुत इम्प्रूव हुआ है ISL. फैंस बढ़े, हमारे फैंस अच्छे हुए हैं थोड़ा, हमारे स्टेडियम की कंडीशन अच्छी हुई है ना. आई थिंक द रेफरी पार्ट इज स्टिल a big controversy in India. Yeah, but we hope कि VAR soon इंडिया में आए कि अच्छा हो. बट इंडियन टीम को थोड़ा तो इम्प्रूव करना पड़ेगा. मतलब नो डाउट सुनील छेत्री इज अ लेजेंड फॉर मी, है ना. सुनील छेत्री इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, है ना. बट इंडियन टीम को इम्प्रूव करना होगा तो आई थिंक उनको तो इंटरनेशनल स्टेज में थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा. सही बात है. अनुकर्ष सर, हमने ये काफी बार पहले ही बात करी है, वेयर वी ड्रॉ comparisons between ISL and why hasn't it reached the levels of the IPL, and the first thing that comes to our mind is the product. IPL में दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, बट ISL में दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स नहीं खेल रहे हैं. सो नाउ दैट, चलो ठीक है, दैट इज प्रोबेबली समथिंग जो हम
in the near future achieve नहीं कर सकते हैं, was the second biggest thing that IPL has given to Indian cricket. It's that उन्होंने इंडिया को प्रॉपर प्लेयर्स दिए हैं, प्रॉपर Right. हार्ड बैटल हार्ड एंड इंटरनेशनली प्रूवन प्लेयर्स दिए हैं. नाउ द फैक्ट दैट तात्या ने हमें अभी बताया कि लास्ट सीजन को छोड़ के सारे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर ऑल ISL सीजन्स हैव गॉन टू फॉरेनर्स, probably tells us that ISL is also not doing a great deal when it comes to making great footballing talent out of India. एक चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, मेरे कॉलेज में जो हम हमेशा अलग अलग पीपल जो इंडियन फुटबॉल में काम करते हैं वो आते हैं, उनमें से एक एक इंडियन फुटबॉल एंटरप्रेन्योर थे. आई आई फॉरगेट हिज नेम. हाँ, तो उनका काम क्या था, टू डेवलप इंडियन फुटबॉल टैलेंट. Now, how does he differentiate from developing Indian football to making Indian football talent? इस वो कहते थे कि मेरे लिए ड्रीम ये है कि जब एक इंडियन बंदा बायर्न म्यूनिख के एकेडमी में या डॉर्टमंड के एकेडमी में जाके खेले, फिर उनके एकेडमी से उनके प्रोफेशनल टीम में आके खेले. नाउ दैट फॉर एग्जांपल दैट आल्सो हैज टू हैपन ओनली व्हेन इंडिया की रैंकिंग एज अ फीफा रैंकिंग एज अ होल बेटर हो, 100 के आसपास हो. बट there are different kinds of aspects to it. जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने कॉलेज में प्रीमियर लीग के बारे में भी पढ़ते हैं, तो जो प्रीमियर लीग का विजन है, that has probably nothing to do with taking English football to the highest level. They only want to make a football tournament that is the best in the world. So I feel हम जब आगे इंडियन फुटबॉल की बात करते हैं, there are 2-3 different aims that someone can achieve at the same time, but I feel clarity is very important कि हम एज इंडियन फुटबॉल एडमायरर्स क्या चाहते हैं कि इंडियन फुटबॉल आगे बढ़े, और उसको उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए व्हाट इज द फास्टेस्ट वे फॉर अस. इज इट बिल्डिंग फुटबॉलिंग टैलेंट दैट गोज ऑन टू प्ले इन यूरोपियन कॉम्पिटिशंस और एनीथिंग एल्स. अनुकर्ष सर, हमने काफी बात की इंडियन फुटबॉल के बारे में पिछले 5 से 10 एपिसोड्स में. आपको ऐसा क्या चीज लगता है कि इंडियन फुटबॉल ऐसा है कि ये 1-2 areas of improvement जो आपको ऐसा लगता है will probably help Indian football go to the next level? I think, like I pointed this out before also, कि it's all about the people coming in and the advertise and and money being thrown into the sport. But money ऐसे नहीं कि बस ऐसे फेंक रहे हैं और सारा corruption में जा रहे हैं. It's all about the money that is actually invested, and you can see results out of it after some time. Like as Tathya very rightfully pointed out, कि the standards of the ISL has improved. Like अगर कोई layman भी ISL का फाइनल देखेगा, वो ये देखेगा कि इस बार प्लेयर्स है ना, उनकी मेंटालिटी इज डिफरेंट देन मे बी इंडियन फुटबॉलर्स की मेंटालिटी थी कुछ साल पहले. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. रॉय कृष्णा का एग्जांपल देता हूं मैं. रॉय कृष्णा ने फर्स्ट गोल कंसीड करवाया, ठीक है. आई थिंक पहले ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द पेनल्टी बीइंग गिवन फॉर कंसीडिंग द पेनल्टी, ठीक है. उसके बाद ही केम बैक, ही हैड कंट्रीब्यूशंस इन द नेक्स्ट 2 गोल्स फॉर हिज ओन. एंड आई नो, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, बेंगलुरु एफसी से जो हुआ सो हुआ, बट आई कैन से इज फॉर दैट मैटर आई सॉ पर्सनालिटी in an Indian player. I saw that vision to fight back. And I think honestly, like we see Sunil Shetty, someone like Sunil Shetty who, takes penalties so well, एक step लेकर, how he is able to slot them in. It goes to show how well, like there are glimpses of how good Indian football can be. But again, like I agree that at this point there's a lot of time, there's a lot of efforts that we have to make as a country to reach a certain level, but we are in the right direction at this point. Lekin it has to keep on going. That progress has to be made at the grassroots level and also at the club level, because steps लिए जा रहे हैं, no doubt. अगर आई लीग को मैं कंपेयर करूं आज की ISL से, बहुत इंप्रूवमेंट है. बट अगेन it's all about football growing as it is, and again media recognition helps at this point. ममता बनर्जी को देख लो, अभी AT के मोहन बागान जीती है. she announced 50 lakhs for their team, but she said this thing in an interview and she was like कि I really hope कि वो लोग ना वर्ल्ड कप भी जीते at some point. Why can't they face Brazil? So वही है कि इस कंट्री में ना उतनी वो है नहीं उस हिसाब से अवेयरनेस. I don't know if she meant it as a joke or not,
But what I mean to say is that it is important कि we that awareness of that game increases, because जितना लोग समझेंगे, जितना भी किसी टॉपिक को और इम्पोर्टेंट जानोगे, then you will be able to serve it better. Absolutely. तात्या, हम जैसे नाउ एज वी कम टू द एंड ऑफ आवर एपिसोड, मैं आपसे ऑल द पॉइंट्स जो आपने इंडियन फुटबॉल के बारे में बोला, वेरी रेलिवेंट, वेरी वैलिड. अगर आप इंडियन फुटबॉल में एक चेंज देखना चाहते हैं इन द नेक्स्ट 3 to 4 years, whether at the ISL level or whether at the Indian team level, scheduling level, whatever, what are some 2 to 3 changes जो आप देखना चाहते हैं, जिसके करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि प्रोबेबली दिस इज अ राइट डायरेक्शन फॉर इंडियन फुटबॉल और राइट डायरेक्शन फॉर द ISL टू ग्रो एज अ लीग? See, for me, I think the first thing I want to add in Indian Super League is the introduction of VAR. Second, Good we idea. should have a relegation system like we have I League, है ना? Yeah. So I League can be the second division and ISL So can be the first, I and think we that is should how it works now. अभी भी I guess no 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 like no, no No, there is a not lot right of now. ambiguity around it, so Yeah, even I did. yeah. I हाँ, the Indian Football Association is doing something to make it happen, but I think it should be introduced as fast as it can. Okay, the relegation system. मतलब जब तक आप लास्ट में तो रहोगे, बॉटम में हो, पर जब तक आप नीचे जाके एकदम फाइट ऊपर नहीं करोगे ना, तब तक आपकी टीम के अंदर वो जोश नहीं आएगा, है ना? हाँ. आपको हार के बाद एक नीचे जाके वापस लड़ के ऊपर आके उनसे भी लड़ के जीतना है. मतलब बहुत होता है कि हाँ. आई थिंक हर कंट्री में उनकी तो मतलब स्पेन, इंग्लैंड, इन सब में तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिवीजन तक होते हैं. कितने कितने लंबे लंबे होते हैं, सबसे क्वालिफाई कर करके ऊपर आना होता है. तो आई थिंक इंडिया में ये सिस्टम, ISL लेवल में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए. और इन द नेशनल टीम आई थिंक हमें अपना मैनेजमेंट स्टाफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना है, चेंजेस लाने हैं, मतलब. और हम जितने मैचेस खिला सके खिलाए. आई थिंक जो अभी इंडियन मैच हुआ है, आज हुआ है जो, आई थिंक वो 200 डेज बाद इंडियन टीम वापस खेली है. मतलब मोर ऑलमोस्ट देन सही है, 6 महीने से ज्यादा. मोर देन 6 मंथ यार इंडियन टीम अब खेल रही है. तो अब ऐसा खेलोगे तो यार आप क्या कर पाओगे. अभी जब जैसे वर्ल्ड कप में भी बोला कि आई थिंक 42 टीम्स हो गई हैं, कितने 42 46 कितनी टीम 48 या नेक्स्ट वर्ल्ड ऐसा हाँ, कुछ, करेक्ट. या कप. तो बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं यार अब इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा. मैंने कहा आप ये देखो, जो टीम लास्ट ईयर नहीं क्वालिफाई कर पाई, यूक्रेन हो गया, है ना, इटली. और ऑस्ट्रिया, है ना, इटली हो गई, है ना, इतनी यूरोप की इतनी कंट्रीज क्वालिफाई नहीं कर पाई, है ना. नॉर्वे. आपको क्या लगता है इंडिया क्वालिफाई कर लाएगा उसके लिए? अभी इंडिया को आई थिंक 2-3 वर्ल्ड कप के लिए तो अभी बाहर रहना चाहिए. बाहर क्या, अभी आपको प्रूव करना चाहिए कि आप 2-3 वर्ल्ड डिजर्व कप के बाद आप ट्राई करो. हाँ, ट्रू. और मुझे पता है ऐसा हो जाएगा. जब तक मैं बड़ा हूँ, आई होप मेरे मरने से पहले वर्ल्ड कप में इंडिया खेल तो ले एक बार. या अनुकर्ष सर, आपको ये आधे घंटे तात्या से बात करके ये नहीं लगा कि जितने बड़े वो रियल मैड्रिड फैन है, उतने उससे ज्यादा वो एक होपफुल इंडियन फुटबॉल फैन है? Yeah, I mean, see, I think this is an emotion which maybe stems from cricket for a lot of people. But ये वही वाली बात है कि like at the end of the day, कितना भी हम लिवरपूल फैन, रियल फैन वो बोल ले, बट अगर इफ गिवन द ऑप्शन, अगर हमारी कोई टीम होती ना इंडिया की, और क्लब होता है जो जेन्युइनली बहुत ही अच्छा कर रहा होता है ऑन इंटरनेशनल स्टेज और इवन द कंट्री, देन शायद हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि इंग्लैंड में कौन सी टीम अच्छा कर रही है, स्पेन में कौन सी टीम अच्छा कर रही है. बट इट्स लाइक वी हैव नाउ अडॉप्टेड टीम्स because we have grown up that way, because हमने देखा नहीं है उतना, and we haven't, of course, like at this point if I say in ATK मोहन बागान अगर मैं उनको लिवरपूल या रियल के अगेंस्ट खिला दूं, तो that match would be a really sad sight to watch for any Indian fan. तो अभी there's a lot of time to go, but इतना है कि there is hope and I see light at the end of the tunnel. बिल्कुल. तात्या, जाते जाते एक चीज, कुछ भी जो आप हमें बोलना चाहते हैं, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं एज ए रियल मैड्रिड फैन, एज ए इंडियन फुटबॉल फैन. ऑडियंस हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, हम इंस्टाग्राम में क्लोज टू 700 फॉलोअर्स हो गए हैं. तो ऐसा कुछ भी जो आप बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, या
कोई बोल्ड प्रेडिक्शन अबाउट एनीथिंग देना चाहते हैं, द फ्लोर इज ऑल ओपन, आप बता सकते हैं. First, I would like to say कि football has changed my life. Okay, मतलब हम्म. फुटबॉल को देख के मेरा कुछ इंटरेस्ट बढ़ गया, वरना मेरे पास कुछ था नहीं पहले करने को. अब मैं मैचेस देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है. मैं लाइनअप क्रिएट करता हूँ, है ना. फ्री टाइम में बैठ के मैं पुराने लाइनअप सब क्रिएट करता रहता हूँ. मतलब फुटबॉल ने मुझे कुछ दिया है करने को, है ना. और आई होप कि फुटबॉल अभी जैसा ब्यूटीफुल गेम है वैसा ही रहे कोई, क्योंकि आगे चल के पता नहीं क्या हो फ्यूचर में. वी डोंट नो क्या हो, क्लब्स बंद हो. अभी सुपर लीग आज ऐसा कुछ बोल रहे हैं, है ना. काश वैसा ना हो, है ना. फैंस हाँ. यूनाइटेड या. रहे, करेक्ट. कि मतलब वर्ल्ड कप और अपने जो क्लब लेवल के गेम्स हैं वो अच्छे से चलते रहे. जो मतलब जो ट्रांजिशन अभी हम लास्ट ईयर में देख रहे हैं, मतलब रिसेंट ईयर्स में देख रहे हैं कि जैसे डिसीजन थोड़े कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, और फुटबॉल का गेम का स्टाइल थोड़ा स्टैंडर्ड वही रह रहा है. जो लास्ट डेकेड में था वैसा गेम हम नहीं देख पा रहे हैं. बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं, पर आई होप कि ऐसा ही अभी जैसा गेम है वैसे ही चले. अच्छे कमबैक्स हमें देखने मिले, है ना. हम एंजॉय करते रहें, है ना. या. हमें एंटरटेनमेंट अच्छा मिले, है ना. और बस यही यही चाहता हूँ मैं. या, दैट्स काफी स्वीट, काफी काइंड वर्ड्स बाय तात्या. इस एपिसोड के लिए इतना ही. हमने रियल मैड्रिड के बारे में काफी जाना, उससे ज्यादा मैंने तात्या के इंडियन फुटबॉल इनसाइट्स के बारे में जाना, हाउ फुटबॉल हैज चेंज्ड हिज लाइफ. अनुकर्ष सर ने आज लिवरपूल के बारे में ज्यादा बात नहीं किया, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेयर थिंग्स इन इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट वेयर he'll probably cover it up in the next episode. But thank you, Tathya, for taking out the time. Yeah, Thank you for thank you being so much, patient man. with us. Yeah, we could not do it yesterday, but we are finally doing it now. So, Huh? yeah, You were I saying something? yeah, Tathya, we were Yeah, saying something. it's an honor to sit along you guys and talk about something we all love, है ना. क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ आई डोंट थिंक ऐसा कोई है फुटबॉल एंथुजियास्ट जिससे मैं अच्छे से खुल के बात कर सकूँ, अपने आइडिया शेयर कर सकूँ, अपनी बातें कर सकूँ, है ना. Yeah. कि चलो अच्छा लगे मुझे. So this is the first time. Thank you guys. Thank you for giving me this opportunity. And I No, hope your podcast. Okay. yeah, the pleasure is all ours एक्चुअली. सो मैं ताथिया को और हमारे सारे व्यूअर्स को भी यही बोलना चाहूंगा कि हम धीरे धीरे यूट्यूब लाइव्स काफी ज्यादा करने वाले हैं. इट कैन बी प्रीव्यूज एंड अदर थिंग्स. सो टिल नेक्स्ट वीक वेयर वी टॉक अबाउट मेनी अदर डिफरेंट थिंग्स. थैंक यू एवरीवन. गुड नाइट. टेक केयर. Thank you. Good night. Good night, guys.